Hello everyone, I am Ms. Nirali Pancholi, Assistant Professor at DTSS College of Commerce Autonomous. Today, let us understand the concept of human resource management. So, what is human resource management? Human resource management is basically the management of human resources in the organization. Basically, human resource management क्या है? जहाँ पे management के अंदर, organization के अंदर human resources को manage किया जाता है. Now, what are human resources? Humans are the skilled workforce which work in the organization or for the organization. It is the process where the people in organization are brought together so that the goals of the organization are met. In this competitive world, it is very necessary for an organization to have right resources, especially their employees, to survive and succeed. So basically, human resources को organization को साथ में लाया जाता है, so the goals or the objectives of the company organization are accomplished effectively and efficiently. Now let us understand with this picture. Human resource management क्या है? ट्रेनिंग देना, सेलेक्ट करना, लोगों को आपस में इंटीग्रेट करना ताकि टीम स्पिरिट हो, स्किल्स मोटिवेट करना, और ये सब चीज़ों से क्या होएगा, आपके जो कंपनी के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो अचीव होंगे. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग people at work in such a manner that they give their best to the organization for achieving its set goals. So basically जब भी आप कोई employee को train करते हो, select करते हो, आपस में integrate होते हैं वो लोग, जब भी वो लोग motivate feel करते हैं और positive environment create होता है कंपनी में, तभी they are very happy to work in that environment. So उससे क्या होता है, अगर वो positive है अपना काम करने के लिए, तो they are very loyal and committed towards your organization. So now let us understand, according to David DeCenzo and Stephen H. Robinson, what is human resource management. Human resource management is concerned with the people's dimension in the management. Since every organization is made of people acquiring their services, developing their skills, motivating them to higher level of performance, and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential to achieving organizational objectives. तो according to David DeCenzo and Stephen Robinson, human resource management क्या है? जहाँ पे तुम तुम्हारे employees को skills के लिए develop कर रहे हो, उनको motivate कर रहे हो ताकि वो higher level of performance को achieve कर सके, and ऐसे ही वो अपने organizational objectives को achieve करे और वो committed रहे अपने organization के तरफ. Now let us understand one by one what is the nature of human resource management. तो human resource management क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. अभी ये ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करेंगे? बाय सेलेक्टिंग देम, बाय मोटिवेटिंग देम, बाय ट्रेनिंग देम. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन? चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, आइदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी वन नीड्स टू मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ दिस इज डन बाय ट्रेनिंग देम, by selecting them, by motivating them. Next is continuous in nature. Now what is continuous in nature? Human resources कभी भी रुकता नहीं है, ये continuously चलते रहता है. जैसे कि for example 2024 में आपका कुछ गोल हुआ रहेगा जो आपने accomplish किया. Now 2025 में आपके कुछ अलग goals रहेंगे, right? तो वो goals को accomplish करने के लिए again you need to train your employees, your human resources, again you need to motivate them, या फिर अगर कोई technological changes आए हैं तो you need to motivate your staff कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को वो लोग अडेप्ट कर सके. Next is objective oriented. Now what is objective oriented? It is further divided into some parts. जैसे individual point of view से आप देखेंगे तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उसने अगर बहुत अच्छे से काम किया है तो उसको प्रमोशन मिले. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उसको वक्त वक्त पे प्रॉफिट मिलते रहे. नेक्स्ट इज टीम वर्क, टीम में सब लोग काम करें. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ना व्हाट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में अगर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे से मैनेज किए जाते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिलते हैं. जैसे कि आपने अगर किसी को ट्रेनिंग दिया है, राइट, आपके एम्प्लॉयज को, वो लोग ट्रेन होंगे तो उनके स्किल्स बढ़ेंगे,
उनके स्किल्स बढ़ेंगे, उनके एटीट्यूड बढ़ेंगे, वो लोग और मोटिवेट होंगे। जितना वो लोग मोटिवेट होंगे उतना ही वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, कंपनी उनको क्या देगी, रिवॉर्ड्स देगी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये सिर्फ एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं है, एम्प्लॉयज को तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कंपनी है, वो भी एनहांस करेगा, उसको भी प्रॉफिट होगा, मार्केट में उनका भी जो कॉर्पोरेट इमेज है वो क्या होगा, एनहांस होगा। तो ऐसे अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं तो यू गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। नाउ कोई भी मैनेजमेंट के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो टीम में काम करे, ठीक है। तो टीम स्पिरिट कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आजकल बहुत से ऐसे कंपनीज है जो क्या करते हैं, एवरी मंथ का कोई भी एक सैटरडे उन लोगों को डिनर पार्टी, लंच या फिर गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका कम्युनिकेशन बढ़ता है आपस में। जितना उनका कम्युनिकेशन एनहांस होगा उतना ही वो लोग बहुत अच्छे से टीम में काम कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम, विच समवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, etc. Development of employees potentialities. Now what is development of employees potentialities? तुम्हारे जो employees है उनको push करना, उनको motivate करना, train करना ताकि वो अपना best दे सके। Okay, now let us study one by one what are the functions of human resource management. फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ना व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि 2025 में आपके कुछ गोल्स रहेंगे, राइट। अभी वो गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक फोरकास्ट लगाना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाउ मच ह्यूमन रिसोर्स डू यू नीड। सो आप वन बाय वन क्या करेंगे, उसको प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी है और मेरे कंपनी में कुछ वैकेंसीज है, तो मैं एडवर्टीजमेंट्स निकालूंगी, ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट्स को देख के देयर विल बी सम कैंडिडेट्स हु विल बी कमिंग टुवर्ड्स माय कंपनी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट हो जाएगा। समझो कि 50 लोग मेरे कंपनी में आए, उसमें से मैंने 15 को सेलेक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, हो सकता है मैंने उसको सेल्स में डाल दिया। इफ समवन इज वेरी गुड एट फाइनेंसेस, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए रख दिया। अगर समवन इज वेरी गुड एट आईटी, मैंने उसको आईटी डिपार्टमेंट में रख दिया। सो नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। व्हाट प्लेसमेंट मीन्स, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अभी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने अकाउंट्स वाले कैंडिडेट को आईटी में डाल दिया या आईटी वाले को मैंने कोई और डिपार्टमेंट में डाल दिया, देन माई वर्क इज नॉट गोइंग टू अकम्प्लिश। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप ट्रेन करते हो, जिनके वजह से उनके स्किल्स, उनके एटीट्यूड, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज समथिंग जहाँ पे कैंडिडेट के एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है अबाउट इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि वो कौन से काम में बहुत अच्छा है, कौन से काम में वो बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकता है। व्हाट आर इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर इट्स वीक पॉइंट्स। नेक्स्ट इज करियर डेवलपमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली करियर डेवलपमेंट इज, जहाँ पे एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को पुश किया जाता है चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनकी काउंसलिंग होती है। नाउ यहाँ पे सिर्फ उनको ही इंडिविजुअल लेवल पे उनका ही ग्रोथ नहीं होता है, बट समवेयर इट ऑल्सो बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के हेल्थ सेफ्टी के लिए दे प्रोवाइड सम थिंग्स, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, एंड फिर वहाँ पे वही जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मेडिकल एड वगैरह प्रोवाइड करना हो गया। नेक्स्ट इट इज कॉम्पेंसेशन। नाउ व्हाट इज कॉम्पेंसेशन, व्हेन योर एम्प्लॉयज वर्क एंड दे वर्क वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कंपनी तुमको, ऑर्गेनाइजेशन तुमको कुछ रिवॉर्ड्स देती है। नाउ दिस रिवॉर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब हो सकता है जहाँ पे तुम उनको हाई पे कर रहे हो या फिर उनको बोनस वगैरह दे रहे हो। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट सच है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दे दिया, कुछ ट्रॉफी दे दिया, अवार्ड दे दिया, जिससे इन रिटर्न दे विल फील वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड कि उन्होंने जितना काम किया है उतना रिटर्न में उनको मिल रहा है। नेक्स्ट इज लेबर रिलेशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो कंपनी के
ऑर्गेनाइजेशन के लेबरर्स है उनके साथ भी आपका रिलेशंस बहुत ही अच्छा हो, बिकॉज अगर कोई एक एम्प्लॉय के साथ भी या फिर कोई एक लेबर के साथ भी अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे तो वो इन रिटर्न सब लोगों के रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HR कि वो अपने लेबर्स के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे। थैंक यू।